Hello students and welcome. Friends, we are studying 12th standard economics, new syllabus, chapter number 6, index number. And today we will study last part of index number. Okay? Yes, friend. Index number is a new chapter for this year and very important chapter. स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी इंडेक्स नंबर के वीडियोस हम लोगों ने देखे उसमें हम लोगों ने जाना है दैट इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल टूल्स विच हेल्प्स टू कैलकुलेट चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल। ये स्टूडेंट्स, ये जो इंडेक्स नंबर ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इट कैन बी population, it can be unemployment, income or profession, etc. Different single variables or group variables we can measure under the index number. Okay, student, in the last video we studied about methods of constructing index number, that is simple index number and weighted index number. Okay, so we already studied what is simple index number. Now today we will study weighted index number. ये मेथड का अगर हम लोग सिंपली में अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पे इस मेथड में हम कुछ वेटेड असाइन करते हैं, फिर वो क्वांटिटी के लिए हो या वैल्यूज के माध्यम से हो। वेट्स हर कमोडिटीज़ को असाइन करके इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करना, मतलब वेटेड इंडेक्स नंबर से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना। Now, in weighted index number, there are two methods: Lesper's index number and Paget's index number. So, with the help of these two methods, we will complete today's video lecture. So, in weighted index number, Lesper's index number is very popular and mostly used for construction of index number. Remember friends, constructing index number by assigning weights is called weighted index number. लेस्प्रेस ने बेस ईयर को एज अ वेट इस्तेमाल करते हुए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने बहुत सिंपल फॉर्मूलेशन के साथ बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटीज़ को जांचने की कोशिश की है और ये स्टैटिस्टिकल मेजर की तरह इंडेक्स नंबर को यूज़ किया है। ओके, सो जर्मन इकोनॉमिक्स Laspress formulated an index number for measuring current prices or quantity in relation to those of a selected base year period. The distinctive feature of Laspress index number is that it uses a group of commodities purchased in the base period as a basis for comparison. Let's understand its formula. It is P01 equals to summation of P1 Q0 divided summation of P0 Q0 into 100. Base year's suffix is 0 and current year's suffix is 1. So here in formula he uses prices of current year and quantity of base year. Okay, we have to find product of prices of current year and quantity of base year. Prices of current year और prices quantity of बेस ईयर, इनका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उनको हमने को क्या करना है, वी हैव टू ऐड अप, उनकी टोटल करनी है तो अपने को समेशन मिलेगा, देन वी विल डिवाइड इट ओके विद समेशन ऑफ P0 एंड Q0. फाइन। तो फ्रेंड्स, लेस्प्रेस के इंडेक्स नंबर में बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइजेस ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर को कंसिडर करके कैलकुलेशन किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से दोहरा रही हूँ, P मीन्स प्राइस, 0 मीन्स प्राइस ऑफ 0 करंट बेस ईयर, 1 मीन्स करंट ईयर एंड Q मीन्स क्वांटिटी. Let us understand these with the help of one example which is given in your textbook. See, there are commodities in column 1, A, B, C, D. Then base year and current year.
ओके, बेस ईयर एंड करंट ईयर को डिवाइड करके रखा है. इन बेस ईयर प्राइजेस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दिए हैं. इन करंट ईयर प्राइजेस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइजेस ऑफ बेस ईयर दिया है. दैट इज PEO, that is P0 means prices of base year 20, 10, 40, 30. Quantity of base year that is 4, 5, 8, 4. करंट ईयर के प्राइजेस में 30, 20, 60, 40 और क्वांटिटीज में 6, 8, 5 और 4. ओके, नाउ see the solution. Formula wants values. Which formula values want? Which values formula wants? See, value formula में बोला है summation P1 and Q0 चाहिए है. Okay, now to get summation of P1 Q0 we have to multiply P1 and Q0. बराबर. फॉर्मूलाज में क्या बोला है? समेशन P1 और Q0 चाहिए. तो P1 हुआ करंट ईयर की वैल्यू दैट इज 30 एंड Q0 मीन्स बेस ईयर की क्वांटिटी. तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है. 4 3 जा ओके 4 इंटू 30 दैट इज 120. सेम वे ये दोनों कॉलम का अपने को मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे लिखना है. सो विल गेट P1 Q0. नाउ समेशन P1 Q0 we want. So what we will do? We will make total addition of this, that is 860. Same way upon summation of P0 and Q0. So what is P0? P0 is prices of base year and Q0 means prices quantity of base year. तो इनका प्रोडक्ट निकालना है. 20 into 4 that is 80. So इनका प्रोडक्ट निकाला, then we want summation, then make total, that is 570. Okay, now we got all the values, put in the formula and your answer will be 150.87. Clear? So this is how we can find index number with the help of less price index number. यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है? ओके, यहाँ पे प्राइस ऑफ करंट ईयर, 1 मतलब करंट ईयर और Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, इनका मल्टीप्लिकेशन, एक प्रोडक्ट निकालना है, फिर उनकी टोटल करवानी है अपने को, दैट इज समेशन. तो ये टोटल्स पहले ये कॉलम बनाना पड़ेगा. P1 Q0 इनका मल्टीप्लिकेशन टोटल आई, फिर P0 Q0 इनका मल्टीप्लिकेशन किया, फिर टोटल बनाई, वैल्यूज मिल गए, फॉर्मूलाज में वैल्यू डाले और अपने को मिल गया अपना आंसर. क्लियर? नाउ वी विल स्टडी Parsh's index number. Yes, German economist Hermann Parsh's, okay, he developed an index number for measuring current price of quantities. Okay, current price or quantity level related to those of index number related to those of selected base period. जैसे कि हम लोग जानते हैं बेस पीरियड के आधार पर उसकी कंपैरेटिवली हम करंट के बारे में क्वांटिटी और प्राइस के लेवल्स को चेक करते हैं. आई रिपीट, बेस ईयर की आधार पर उसके कंपैरेटिव में हम करंट ईयर के बारे में जो क्वांटिटी और प्राइस है उनके लेवल को चेक करते हैं. यहाँ पर हरमन पाशेस ने भी सेम किया है. बेस पीरियड ही हमारे पास है, उसके साथ हम रिलेटिव कंपैरिजन करते हुए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं. लेकिन पाशेस के इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला की एक खास बात है कि यहाँ पे करंट ईयर को एज अ वेट लिया गया है. करंट ईयर को एज अ वेट लिया गया है. ओके, लास्प्रेस के इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने बेस ईयर को, उनकी प्राइस क्वांटिटी को एज अ वेट लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग करंट ईयर को एज अ बेस ईयर लेने वाले हैं. सी, Parsh's index number uses current period as a weighting. Okay, now let's see what is Parsh's formula. That is P01 equals to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1 into 100. Again, 1 means current year, 0 is suffix of
base year. Okay, then P means price and Q means quantity. Okay, now price of current year, quantity of current year इनका total upon price of base year and quantity of current year into 100. This is what our formula. मैं रिपीट कर रही हूँ. प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, इनका टोटल समेशन अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, इनका टोटल into 100. This is the formula. Let's solve one example to clear this. Here, as per the passage, importance is given to current year. So, question is commodities M and OP बेस ईयर और करंट ईयर दिया है. बेस ईयर में प्राइजेस की वैल्यूज दी है, बेस ईयर में क्वांटिटीज की वैल्यू दी है. करंट ईयर में प्राइजेस की वैल्यू दी है और क्वांटिटीज की वैल्यूज दी है. बराबर. नाउ अपने को फॉर्मूलाज के हिसाब से उनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. तो फॉर्मूला में वैल्यू क्या चाहिए? समेशन P1 एंड Q1. देन वी हैव टू मेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ समेशन ऑफ P1 और Q1. इनका पहले अपने को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. सो दिस एंड दिस, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो हियर इज द सॉल्यूशन. सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ P1 एंड Q1, दैट इज 40. 5 8 जा 40. तो ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन किया तो अपने को मिला P1 एंड Q1. ये प्रोडक्ट मिला. नाउ वी वांट समेशन, टोटल चाहिए. तो इनकी वर्टिकल टोटल की वो आई 134. अभी अपॉन क्या है? समेशन ऑफ P0 एंड Q1. तो P0 दिस कॉलम एंड Q1 Q1 मतलब ये. सो 8 2 जा 16. तो यहाँ पे P0 और Q1 को हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे. फिर उसका समेशन चाहिए. विल मेक द टोटल. Okay, after adding we are getting 63. Then put values in the formula and you will get your answer. Clear everyone? So this is what passage index number. Simply देखो, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है. दो मेथड्स है, सिंपल एंड नेक्स्ट इज वेटेड इंडेक्स नंबर. ओके, देन सिंपल इंडेक्स नंबर में और कोई मेथड्स नहीं है, बट वेटेड इंडेक्स नंबर में ओके लास्ट प्रेस और दूसरा क्या बोला मैंने यहाँ पे पासेज, उन्होंने अपने इंडेक्स नंबर को एक फार्मूलाज दिया है. सो वो यूज़ करके अपने को फार्मूलाज की जो भी वैल्यू चाहिए उसको फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट निकालना है, एडिशन करना है अपॉन इनटू 100. देन वी आर गेटिंग अवर इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू लैस्प्रेस एंड Herman passage. Okay, so this is about how we can construct index number. Clear? So that's all for today. Thank you.